Thank you so much, Mr. Shari, to connect with us from Pakistan. And being a personal trainer, I'm so excited to chat with you. Welcome to Chat with Khwahish, your wish. How are you doing today? Alhamdulillah, I'm good. What about you? I'm great. Thanks for asking. So, as you know, this show will be on air on YouTube, and we are going to connect lots of people. And I hope we inspire a lot. That's the main motive of our behind this show. So, as we are moving to the segment number one, which is connecting yourself, I would like to know, can you please let us know about yourself, your personality, how are you, your passion, your family relation, so that our viewer will know more about you. I'm Shari Chaudhary from Pakistan, a fitness trainer and a nutritionist. And if you talk about my personal life, then I'm master's in computer science, and you can say I'm software developer. And if you talk about my passion, then bodybuilding and fitness is my passion, and I especially, uh, I love to spread the fitness awareness to world and to all the people connected to my social media and all the people who are facing different, like you can say, as we are going through a pandemic. So it's a biggest challenge for us to face this thing strongly through fitness, through diet, and through making our lifestyle better. How about your personal life with connection with your parents, family, and close one? उनके बारे में कुछ Uh, कहना चाहते हैं? Definitely, if you talk about my personal life, I live with my family, and I mostly give time to them as much as the time I can give to them, mostly on weekends. But if you talk about my work routine, then uh, it's all about fitness. I I train different clients. I do personal trainings. I train clients worldwide online. So it's all about my fitness passion, and this is my field. That's very good to know. But I have seen कि आपने एक पोस्ट अपलोड किया था जिसमें आप कुछ कुकिंग रेसिपी बता रहे थे, like some fitness kind of, right? मुझे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे उससे रिलेटेड कि आप मील जो है ना प्रिपेयर करते टाइम, लाइक वेट गेनर की टर्म यूज होती है, ऐसा शेक जिसमें आप पी सके डेली बेसिस पर, जिससे आपका वेट गेन हो सके। और खासतौर पर रमजान चल रहा था, तो सहरी में काफी लोगों ने पूछा था कि ऐसा कोई शेक हो, ऐसा कोई ड्रिंक हो जो आप यूज करें फैट लॉस के लिए। तो वो उन दोनों के ऊपर मैंने वर्किंग की, और मैंने यही प्रेफर किया कि मैं इससे बेहतर कि बताऊं लोगों को, सिर्फ उससे बेहतर ये है कि मैं खुद परफॉर्म करूं और बना के दिखाऊं। तो वो ज्यादा बेटर था। well said. आपको अपने जॉब में सबसे बेस्ट क्या लगता है, आपके फिटनेस में या आप जो भी काम करते हैं, आपको सबसे ज्यादा बेस्ट क्या लगता है? बेस्ट चीज इसकी है कि आप लोग ये एक हेल्प है सबकी, लाइक फिटनेस की अवेयरनेस जब आप लोगों को तक लेकर जाते हैं तो ये हेल्प होती है सबकी। एक सदका समझ लें, ठीक है, Exactly. एक अच्छा काम समझ लें, ठीक है, क्योंकि एक तो जॉब आपकी होती है ना जिससे आपको अर्निंग होती है, सिर्फ दूसरों को कोई फायदा नहीं होता। लेकिन ये जो जॉब है इसमें यह कि आप सबको फायदा भी दे सकते हैं साथ साथ। जब आपने कहा कि लाइक अजर सदका, ये हमारा जो शो है, मैंने आपको बताया हुआ, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ काइंडनेस जो हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें कि हम सब भी कुछ कर सकते हैं। विद दैट नोट आई वांट टू नो, आपने पर्सनल ट्रेनर ही प्रोफेशन क्यों चुना, लाइक व्हाई यू बिकम ए पर्सनल ट्रेनर? I have started from fitness modeling and fashion modeling, especially. Then I will go toward fashion modeling and fitness modeling. And now I am only working like fitness brands, sportswear brand. And after that, I have completed my studies and research of uh, food and nutrition and fitness trainer from I have just completed my course from USA. So I have started working towards fitness training and diet plans, and you can say everything related to health and fitness.
That's good. बहुत अच्छा लगता है कि कोई अपना पैशन एंड ऑल्सो एज अ प्रोफाइल को फिटनेस में डालते हैं, बिकॉज मोस्टली सबको कहना है कि हाँ हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, ये बनना है, वो बनना है. वेरी फ्यू पीपल से, क्योंकि ट्रेनर एज अ पर्सनल न्यूट्रिशन बनना इट्स नॉट इजी, बिकॉज आपको बहुत चीजें याद करना पड़ता है, एंड ऑल्सो टू मेक पीपल अवेयर, क्योंकि हमें कुछ भी मसला हम सिर्फ डॉक्टर के पास जाते हैं, बट वी डोंट थिंक दैट बिल्कुल. फिटनेस भी जरूरी है. With that note, I would like to know, okay, what is your personal fitness goal? आपको क्या goal है fitness में? As I am a fitness model as well, and I mostly work with fitness brands. So इसके लिए मुझे तो proper shape में रहना पड़ता है, और ये मेरा शौक भी है, क्योंकि mostly लोग मैंने जो देखे हैं कि they go to competition and after that they have a big tummy and they gain weight, they get out of shape. So मेरा ये हमेशा ये goal होता है कि मैं throughout the year, throughout the season और थ्रू आउट ऑफ सीजन मैं हमेशा शेप में रहूं और एक अच्छी शेप में रहूं. Okay, well said. तो आपको न्यूट्रिशन के बारे में लाइक कितना मालूमात है, कुछ आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, जो हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा फायदेमंद हो जाए? जी, न्यूट्रिशन के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप कोई भी आपको डिजीज है, सबसे पहले आपको उसका रीजन पता होना चाहिए कि रीजन क्या है. ठीक है, रीजन आपको कैसे पता लगता है? मोस्टली लोग मैंने देखे हैं, दे गो टू डॉक्टर. डॉक्टर क्या करता है जी? डॉक्टर को कहते हैं जी वीकनेस है, हमारे मसल में पेन है, हमारा बॉडी में पेन है. वो अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते. डॉक्टर ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, उनको मल्टीविटामिन रिकमेंड कर देता है. और ये मैंने 90% केसेस जो देखे हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं जी वीकनेस है, बॉडी थकी थकी है, और और डॉक्टर ये करते हैं कि उन्हें मल्टीविटामिन रिकमेंड कर देते हैं, और जब दोबारा जाते हैं उससे महंगी वाली मल्टीविटामिन रिकमेंड कर देते हैं. इस तरह कैल्शियम और इस तरह की जो है विटामिन, उनकी तरफ डॉक्टर उन्हें ले आते हैं. लेकिन मेन चीज है अवेयरनेस आपने अपने अंदर खुद लेके आनी है, कि आपको कम से कम पता हो रीजन क्या है. ठीक है, उसका हल निकाले. इसकी मिसाल मैं इस तरह कहूंगा कि अगर आपके पाँव में कांटा चुभ जाता है तो आप कांटा नहीं निकाल रहे, आप मेडिसिन लगाए जा रहे हैं. कांटा नहीं निकालेंगे तो इसका हल नहीं हो सकता. आप कांटा भी निकालें, उसके बाद मेडिसिन लगाएं, ताकि आपको परमानेंट हल, परमानेंट सॉल्यूशन मिल सके. और परमानेंट सॉल्यूशन जो है इसका फिटनेस और डाइट. आप फिजिकल एक्टिविटी ऐड करें, मस्ट है. आप किसी भी लेवल पे हैं, किसी भी एज में हैं, फिजिकल एक्टिविटी आप लाजमी ऐड करें. आप जेंट्स हैं, लेडीज हैं, कोई भी हैं, आप इवन लेडीज के ऊपर मैं काफी फोकस करता हूँ कि लेडीज भी कर सकती हैं. लेडीज के मोस्टली ये होता है कि जी जिम कैसे जाएं, और एक बहुत ज्यादा एक बर्डन फील करती है कि जिम जाएंगी फिर फिटनेस होगी. तो फिटनेस इट नॉट जस्ट इन जिम, यू कैन डू एट होम. लाइक मैंने एक वीडियो में बात भी की थी इसी पे, कि आपके घर में स्टेयर्स हैं, आप स्टेयर्स ज्यादा से ज्यादा चढ़ें. ठीक है, हाँ, अप डाउन. ठीक है, आप, मैंने ऐसी ऐसी एक्सरसाइजेस किचन में, किचन की शेल्फ को यूज करके भी मैंने एक्सरसाइजेस गाइड की थी फॉर लेडीज, जिसमें आप फिट रह सकते हैं. क्योंकि इट्स ऑल अबाउट एक्सरसाइज. आपकी बॉडी में आप डाइट जब देते हैं, ठीक है, डाइट आप एक्स्ट्रा देते हैं, सबसे बड़ी रीजन ये होती है बीमारियों की. आप जितनी डाइट लेते हैं उतनी आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती, उसको यूज नहीं करती, तो वो आपकी बॉडी में फैट स्टोर हो जाता है. और डाइट और एक्सरसाइज अगर ये हो आपकी लाइफ में, तो आप अपनी बॉडी को किसी भी शेप में लेकर जा सकते हैं डाइट और एक्सरसाइज के थ्रू. Well said. Because even I got inspired because I follow The Biggest Loser. वहाँ पे I saw they do the step up, stairs पे जाना नीचे. It really helps. It really helps. Really. It's all about burning calories, using your body. Exactly. Yeah. You can use your body at home. You can do body weight exercises at home. You can do cardiovascular activities at home. It's just about using your body as maximum as you can according to your fitness goal. Yeah. As you said, you focus more on girls or female. Yeah, that's required. क्यों पता है? क्योंकि वो हम लोग तो we are man, we know कि हाँ हम लोग को कहाँ से we do daily activities.
फीमेल क्या है, बिकॉज उनका बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, एंड व्हेन यू गिव देम ए होप लाइक फॉर द फिटनेस, रियली थैंक्स अ और लॉट, दैट्स खासतौर वेरी पर ग्रेट। लेडीज एज वेल एज 40+, जो भी 40+ परफेक्ट, या होते हैं और जो लेडीज होती है, उनके ऊपर अगर फोकस किया जाए तो, क्योंकि वो लोग ऐसे हैं जो होप लूज कर चुके होते हैं कि जी नहीं हो सकता एक काम। अब 40+ आप होंगे, आप कहेंगे जिम जाऊंगा तो बड़ा ऑड सा लगेगा। तो ये या सारा एक मेंटल चीज है आपकी। ठीक है, आपकी हमारा जो माइंडसेट ही है बेसिकली। हाँ माइंड सेट है, टोटल माइंड सेट है। आप या फिटनेस घर पे भी कर सकते हैं। मेरा जो फोकस, आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे देखें तो मेरा मैक्सिमम फोकस उन लोगों पे होता है जो एक एवरेज ऑडियंस है, लाइक जो जिम नहीं जाते, और ओवरऑल एक ऑडियंस है पाकिस्तान की मेजोरिटी जो है, उनको फिट रखने के ऊपर मेरा जो फोकस होता है। मेरी आप वर्कआउट की वीडियोस देखें, मैंने लास्ट ईयर स्टार्ट की है उसके ऊपर वर्किंग, लेकिन जो ओवरऑल ऑडियंस को मैं टारगेट कर रहा हूँ वो मैं तकरीबन 3 साल से कर रहा हूँ। क्योंकि मेन इश्यूज ये है, फिटनेस, डाइट और नॉर्मल रूटीन में आप रह के, नॉर्मल लाइफस्टाइल में रह के आप फिटनेस को किस तरह अडॉप्ट कर सकते हैं। I must follow you because I require your advices. Because man, like I joined gym and then I drop out because it was like time management नहीं हो रहा था. But then never mind. We will continue with that. Okay. So when you, because it's not that कि सारा client happy हो, बहुत सारे client ऐसे होते हैं जो dissatisfied होते हैं, जो बहुत depression, जो मायूस होते हैं. How you handle such clients? अब मेरा टारगेट ये होता है कि मैं जो पर्सनली, क्योंकि मैं मोस्टली ऑफर करता हूँ 1-on-1 कोचिंग। Okay. मैं ग्रुप सेशन जो है वो साल में 1-2 दफा अनाउंस करता हूँ, लेकिन जो मेरा थ्रू आउट द ईयर फोकस होता है वो 1-on-1 कोचिंग होती है। मतलब एक क्लाइंट के हिसाब से उसको डील करना, उसके बॉडी के हिसाब से उसको डाइट एक्सरसाइज सजेस्ट करना, क्योंकि ग्रुप में वो चीज नहीं आ सकती। ग्रुप में आप एक ग्रुप को डील कर रहे हैं, Yeah. ठीक है, आप पर्सनल उसकी स्पेसिफिक जो उसकी कंडीशन है उस हिसाब से आप डील नहीं कर रहे। तो मेरा फोकस ये होता है कि मैं एक क्लाइंट को डील करूं, ठीक है, और 1-on-1 कोचिंग पे ज्यादा फोकस होता है। तो इसी तरह मैं ज्यादा क्लाइंट जो है वो मैं रखता ही नहीं हूँ। लाइक आप समझ लें कि सिलेक्टिव से क्लाइंट्स रखता हूँ और उनके ऊपर मैं Okay. प्रॉपर फोकस करता हूँ ताकि उनको शिकायत का मौका ना मिले। और यही रीजन है कि काफी क्लाइंट्स मेरे साथ ऐसे हैं जो 2 साल से 3 साल से चल रहे हैं, और Perfect. उनका Well said. मतलब फिटनेस का गोल तो चेंज होता रहता है। ठीक है, पहले फिटनेस का गोल था जी कि बॉडी को एक्टिव करना है, फिर हुआ जी वेट लॉस करना है, फिर बॉडी को प्रॉपर फिटनेस में लेके आना है, फिर बॉडी बिल्डिंग की तरफ जाना है। फिटनेस गोल तो आपका चेंज होता रहता है जैसे जैसे आप फिट होते हैं, आपका माइंड सेट जो है वो और अच्छा होता है, और आप ये है कि गोल अपना नया सेट करते हैं और उसके ऊपर वर्किंग करते हैं। तो मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह के सब क्लाइंट जो है वो सेटिस्फाइड है। कोई ऐसा Alhamdulillah. क्लाइंट नहीं है मुझे आज तक फील हुआ कि, ना मुझे किसी क्लाइंट ने आज तक कहा कि जी मैं सेटिस्फाई नहीं हो सका। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी क्लाइंट्स हैं कोचिंग के बाद भी अभी तक मुझसे रब्ता करते हैं और गाइडलाइन लेते हैं, दे ऑल आर सेटिस्फाइड अल्हम्दुलिल्लाह। Yeah, this is what how you maintain the long-term relationship, because it's not that हाँ थोड़ा सा temporary relation हो दफा दफा, एक long-term relationship last तक end तक कहाँ तक होगी, people don't know. With that note, when you said you are satisfied with the clients, so how you keep motivated them? क्योंकि for example like me people, एक महीना 2 महीना कर लिया, हाँ tired हो जाते हैं because of time and all that. So how you keep motivating? नहीं, you have to focus on that. So how you motivate the clients basically? व्हेन यू सी रिजल्ट इट बिकम्स एन एडिक्शन। आपने सुना होगा कि जब आप साथ साथ रिजल्ट देख रहे होते हैं, जब आपकी बॉडी इंप्रूव हो रही होती है, आपको एडिक्शन होती जाती है उसकी। लाइक एक क्लाइंट अगर जिम जाता है, 1 मंथ में उसको रिजल्ट नहीं मिलता तो वो फेडअप हो जाएगा इससे। Yeah. अगर उसको रिजल्ट मिलता है तो वो अंदर से खुश होगा, एक थेरेपी टाइप बन जाती है एक्सरसाइज उसके Yeah. लिए। तो वो जरूरी Positivity. समझता है उसे, क्योंकि लाइफ स्टाइल है, देयर इज नो शॉर्टकट इन दिस। आप कुछ लोग आते हैं जी के हमें ये गोल है, हमने ये गोल अचीव करना है बॉडी बिल्डिंग में, कि हमने इतना बड़ा मसल करना है, मसल ऐसी शेप में लाना है, और उसके बाद बॉडी बिल्डिंग छोड़ देंगे। तो इट्स अ लाइफ स्टाइल। ठीक है, कोई फिटनेस का नहीं है कि जी आपने 3 मंथ 4 मंथ में एक चीज अचीव कर दी तो पूरी जिंदगी आपके साथ चलेगी।
No, it's a lifestyle. You have to maintain this lifestyle. Well said. So लाइक अब आप इस जॉब को, इस प्रोफेशन को लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं, लाइक क्या करें वो लोग, कैसे फिटनेस तक ध्यान दें, एंड एज दिस जॉब पॉइंट ऑफ व्यू सारे फिटनेस के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, हाउ टू अपील फॉर दैट? मैं हमेशा कहता हूँ कि अपनी डाइट और अपनी एक्सरसाइज के ऊपर प्रॉपर फोकस करें। डाइट में डाइट प्रॉपर, मैंने इवन डाइट प्लान्स जो हैं वो मैंने अपने यूट्यूब पे डाले हुए हैं, ठीक है। एक स्टैंडर्ड जो ऑडियंस को टारगेट करके उनके ऊपर डाइट प्लान बना के मैंने यूट्यूब पे डाले हैं। आप एटलीस्ट अभी अगर आप मुझे लें तो मैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर मेरा यही फोकस होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस की अवेयरनेस जो है उसके ऊपर काम करूं, ठीक है। मोस्टली लोग कहते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग, तो मैं यही कहता हूं कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए, एक क्लाइंट मेरे साथ कनेक्टेड है, उसको मैंने दिन में एक स्पेसिफिक टाइम देना है, ठीक है। लेकिन जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए तो मैं प्रॉपर यूट्यूब चैनल है, आप 24 घंटे में जब आपका दिल करे आप देख सकते हैं। आप इंस्टाग्राम है मेरा, उसमें आप देख सकते हैं। तो उसमें ढेर सारी वीडियोस इसी बारे में, अगर वो सब सिर्फ और सिर्फ आप वो वीडियो से देख लेना, आपकी 90% फिटनेस का जो क्यूरीज होती हैं, जो कंफ्यूजन होती हैं, वो क्लियर हो जाती हैं आपके माइंड में। परफेक्ट। a part of personal fitness, आप it's okay, it's a part of your passion, इसके अलावा कुछ काम करते हैं? I'm a software developer as well. Wow, really? Yeah. So how's that job? How's that work? Alhamdulillah, it's good. As I have said earlier that I have completed my studies with this. मेरे पेरेंट्स ने एक शर्त रखी थी when I have started bodybuilding in 2010. तो मेरे पेरेंट्स, I was in first year and मेरे पेरेंट्स ने एक शर्त रखी कि जिस दिन नंबर कम हुए, आपके परसेंटेज डाउन हुई, उस दिन जिम खत्म। तो मेरे जेहन में वो चीज आ गई और मैंने स्टडी पे भी प्रॉपर फोकस स्टार्ट कर दिया। तो ये एक काफी इंटरेस्टिंग सा काम हुआ, स्टडी में भी अच्छा हो गया मैं, और ये तो पैशन था ही था मेरा। परफेक्ट। आप इस इंडस्ट्री में जो फिटनेस सेंटर है, लोगों को क्या एडवाइस करना चाहते हैं? सारे फिटनेस सेंटर, सारे ट्रेनर जो हैं, उनको कुछ अपना एडवाइस क्या कहना चाहते हैं उन सबसे? मोस्टली लोग मैंने देखे हैं, काफी क्लाइंट्स भी मेरे पास आते हैं जो एक होप लूज कर चुके होते हैं फिटनेस से। मतलब किसी ट्रेनर के पास वो गए, ठीक है, और उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा उसके साथ। क्योंकि मोस्टली ट्रेनर्स काफी ज्यादा, मैं मोस्टली नहीं कहूंगा, काफी ज्यादा एक परसेंटेज है जो अर्निंग से मतलब रखते हैं, सिर्फ कि अर्निंग हुई, क्लाइंट आया आपके पास, आपने उससे चार्ज किया, उसके बाद बस काम खत्म। आप 4 दिन 5 दिन बाद अटेंशन नहीं देते उसको। वो से ज्यादा जो है मुझे क्लाइंट्स ये शिकायत करते हैं और वो दूसरे ट्रेनर्स के पास आते हैं कि जी हमने फीस सबमिट की और कोचिंग स्टार्ट हुई और उसके बाद हमारा कांटेक्ट ही नहीं हो सका उनसे। तो ऐसे लोग काफी ज्यादा मैंने देखे कि अपनी होप छोड़ देते हैं कि हम फिट हो सकते हैं, तो होप ही छोड़ देते हैं वो, मतलब एक चीज को बुरा समझना शुरू हो जाते हैं कि जी सभी ऐसे हैं। तो मैं ये कहूंगा जो मेरे फिटनेस ट्रेनर भाई हैं उन सब से कि आप चार्ज करें, आप हाईली चार्ज करें, लेकिन एटलीस्ट जो क्लाइंट है उसके साथ सिंसियर रहें आप, क्योंकि इससे ये होगा कि क्लाइंट जो है आपको लॉन्ग लास्टिंग आपके साथ रहेगा, आपको जहां भी जाएगा आपकी मार्केटिंग करेगा वो कि जी मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की है, मैंने शैरी चौधरी से ट्रांसफॉर्मेशन की है और मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। आप देखेंगे कि एक इंसान अगर उसका वेट ज्यादा है और वो वेट अपना अच्छा करता है, मतलब फिटनेस में आता है, तो उससे 100 लोग पूछते हैं, जहां पे वो जाता है सब पूछते हैं जी आपने कैसे किया है। तो वही क्लाइंट अगर आपने उसके साथ अच्छा बिहेवियर रखा होगा, अच्छा एक्सपीरियंस होगा, तो वो सबको आपकी मार्केटिंग करेगा। एग्जैक्टली, वेल सेड। बिकॉज रिलेशनशिप, हम लोग बिजनेस में एक बात कहते हैं, टैक्टिक्स एंड स्ट्रैटेजी। टैक्टिक्स मतलब शॉर्ट टर्म जो अपने का जो हो रहा है, स्ट्रैटेजी मतलब वो लॉन्ग टर्म होता है जिससे लोग आपसे हमेशा राब्ता रखेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू नो
ऑब्वियसली इन दिस करियर आप नए नए आए तो आप मिस्टेक किए होंगे, इट्स नॉट दैट हम परफेक्ट हो। तो आपने कुछ मिस्टेक किया जो आप अभी भी रिकलेक्ट करते तो आप हाँ मैंने ये गलत किया था, ऐसा कुछ याद है आपको? मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी जब मैं नया आया तो मैंने ट्रेनर हायर नहीं किया था। मैं मेरे ज़हन में ये था, मैं बुक्स पढ़ता था काफी ज्यादा, मेरे पास नॉलेज था। मेरे ज़हन में ये था कि जी नॉलेज तो है, बस जिम में जाके इम्प्लीमेंट करना है। वो जो चीज थी वो मैं 1 साल बाद 2 साल बाद जाकर मुझे समझ आई कि नॉलेज के साथ साथ एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। मैंने गलतियां की, मुझे समझ आया कि ये गलती है, मैंने उसको कवर किया, मैंने उससे सीखा। तो ये प्रोसेस से जो मैं गुजरा हूँ, ठीक है, इसमें ये था कि मेरा जो बॉडी में काफी ज्यादा जो वीकनेस थी, ठीक है, वो अगर मैं स्टार्ट से डे 1 से कोच हायर करता तो वो वीकनेस मेरी जो है वो एक स्ट्रेंथ में बदल सकती थी मेरी। क्योंकि जब आप प्रोफेशनल स्टेज पर जाते हैं, लाइक मैं कंपटीशन में गया था, मुझे स्टार्ट से कंपटीशन का काफी शौक पड़ गया था। जब मैंने जिम ज्वाइन किया तो मैंने देखे काफी ज्यादा जो जिम में काफी ज्यादा लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे। मैंने उन्हें देखा तो मुझे भी काफी ज्यादा शौक हुआ, यार मैं भी जा सकता हूँ। मैंने तैयारी की, मैंने मजीद हार्ड वर्क किया, तो मुझे फील हुआ कि यार अब मैं जा सकता हूँ। तो उस टाइम जो है काफी ज्यादा जब मुझे फील हुआ, जब मैं फर्स्ट टाइम स्टेज पे गया तो मुझे फील हुआ कि ये वीकनेस बॉडी में है और ये कैसे दूर होगी। फिर मैं कोच के पास गया उसके बाद, तो फिर कोच ने जब मुझे गाइड किया तो उस टाइम मुझे फील हुआ कि ये मैंने गलती की है, ये जो मैंने टाइम जाया किया स्टार्ट का अपना, गलतियां करके सीख के, अगर मैं कोच के पास जाता तो मैं डायरेक्टली इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकता था। क्योंकि उस बंदे का जो 10-20 साल का एक्सपीरियंस है वो डायरेक्टली आपके ऊपर अप्लाई हो जाता है। मोस्टली लोगों को मैंने देखा है कि वो यूट्यूब देखते हैं और वो समझते हैं कि जी सब कुछ आ गया। तो ऐसा नहीं होता। यूट्यूब पे मेरा भी यूट्यूब चैनल है, लेकिन यूट्यूब पे एक स्टैंडर्ड जो है ना वो मटेरियल अपलोड होता है। प्रॉपर आपकी बॉडी कंडीशन को फोकस नहीं किया जाता। ठीक है, जब आप किसी कोच के पास जाते हैं, वो आप अपनी लाइफ का फुल एक्सपीरियंस जो है, नॉलेज जो है, वो आपके ऊपर डायरेक्टली इंप्लीमेंट करता है, आपकी बेस अच्छी बन जाती है। जो लोग भी ये सोचते हैं कि जी कोच के पास जाएंगे तो पैसे ज़ाया होंगे, उनके लिए मैं ये कहूंगा आप ना जाएं, लेकिन एटलीस्ट आप स्टार्ट में जाएं, आप अपनी बेस अच्छी करें, उसके बाद आपको नॉलेज भी आ जाएगा और आपका एक फ्लो बन जाएगा। उस बेस को आप लेकर एक अच्छी शेप में आ सकते हैं। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट है, अभी कोविड-19 का दौर चल रहा है, सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, आपकी तरफ से हमारे सब लोग। तो इस कोविड-19 में ज्यादा से ज्यादा हेल्थ इशू आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग स्ट्रेस में जा रहे हैं, कभी कभार फैमिली इश्यूज, कभी कभार जो बीमारी इश्यूज एंड ऑल। तो अब इन सबको क्या एडवाइस देना चाहते हैं ऐसे हेल्थ पे, लाइक क्या ज्यादा फोकस करें सो एटलीस्ट दे विल बूस्ट अप द इम्यूनिटी मोस्टली? इम्यूनिटी इज अ मेन थिंग। लाइक अगर आप एक्टिव नहीं है, ठीक है, मोस्टली मैंने जो अभी तक देखे हैं उन लोगों के साथ एक कोविड वाला इशू हुआ है जो एक्टिव नहीं थे, जिनका लाइफस्टाइल जो था बिल्कुल लेजी टाइप था, उनका इम्यून सिस्टम काफी वीक था। अगर आपकी लाइफस्टाइल में कोई फिजिकल एक्टिविटी हो तो आप इससे बच सकते हैं। ठीक है, आपकी मोस्टली मैंने ये देखा है कि उन लोगों को ज्यादा इशू हुआ है जो मतलब खाया पिया और सो गए, ठीक है, जिनका वेट ज्यादा गेन था, जिनको पहले से ही कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, ठीक है, जिनका इम्यून सिस्टम काफी ज्यादा वीक था। तो इसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियोस, जैसे ही स्टार्ट हुआ तो मैंने प्रॉपर वीडियोस बनाई, और उसके बाद जब देखा मैंने जिम तो क्लोज हो रहे हैं, तब फिटनेस कैसे करेंगे लोग। उसके बाद मैंने आई वाज वर्किंग विद अ ब्रांड लीड एक्स, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है रेजिस्टेंस बैंड। आपने देखा होगा होम वर्कआउट में रेजिस्टेंस बैंड काफी ज्यादा यूज हो रहे थे। उसके ऊपर मैंने प्रॉपर वर्कआउट वीडियोस बनाई कि होम वर्कआउट में आप कैसे फिट रह सकते हैं, आप बॉडी वेट एक्सरसाइजेस कैसे कर सकते हैं। प्रॉपर वीडियोस मैंने इसके ऊपर बनाई हुई हैं। ठीक है, तो मैं हमेशा ये रिकमेंड करूंगा कि आप यूट्यूब चैनल देखें। ठीक है, उसमें डाइट प्लान भी आपको मिलेगा, एक्सरसाइज प्लान भी आपको मिलेगा। इम्यून सिस्टम के ऊपर काफी ज्यादा बात की हुई है, वेट लॉस के ऊपर की हुई है। हर टॉपिक जो माइंड में होता है, और 90% टॉपिक्स जो है जो मेजोरिटी के माइंड में होते हैं वो मैंने कवर किए हुए हैं।
ओके, सो विद दैट नोट हमें और भी जानना है कि इस मुकाम पे लाइक आपके पास बहुत सारे स्ट्रेंथ भी होंगे, you have weakness also. So would you like to tell something about strength and weakness? मेरा ये मानना है कि जब आप समझना शुरू हो जाते हैं कि आई एम परफेक्ट, आई एम कंप्लीट, तो आप एफर्ट करना छोड़ देते हैं। मेरा ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मैं समझना शुरू हो जाऊंगा कि जी मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, ठीक है, मुझे और इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, तो मैं एफर्ट करना ही छोड़ दूंगा। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस कि आपके माइंडसेट बन जाएगा कि जी मैं एफर्ट कर चुका हूँ और इस लेवल पे आ चुका हूँ, मजीद एफर्ट की जरूरत नहीं है। जब आप एफर्ट छोड़ेंगे तब आप किसी काम के नहीं रहेंगे। तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो वीकनेस तो हर इंसान में होती है, ठीक है। So what's a weakness? मेरी जो वीकनेस, आप मेरी वीकनेस के बारे में बात करें। कुछ तो होगा, because for me my weakness is my family emotions. You know, आपका क्या weakness होता है? At least people will know, हाँ शायरी के पास भी कुछ weakness है. It's not that it's only the strength one. जी फैमिली वीकनेस तो होती है, लाइक आपकी फैमिली अटैचमेंट जो है जितनी ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है, फैमिली इमोशंस काफी ज्यादा आपके लिए मैटर करते हैं। इवन आपको ट्रेनिंग छोड़नी पड़ जाती है कई दफा फैमिली की वजह से, फैमिली कमिटमेंट की वजह से। That's true. और इसके अलावा अगर वीकनेस का पूछें तो जो मुझ में है, मैं ये कहूंगा कि मुझे कुकिंग में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। जो मुझे कभी कभी फील होता है कि जी कुकिंग आनी चाहिए और मील्स अपने खुद प्रिपेयर करने चाहिए, तो ये वीकनेस आप कह सकते हैं ये है। Okay. With that note, we are in chat with Mr. Shari from Pakistan as a personal trainer. I'm really glad that our segment 1 is coming to an end. We will take a short break. Please stay tuned with us. Don't touch your remote anywhere. We'll be back after a short break and we are in conversation with Mr. Shari from Pakistan. Welcome back after a short break. We are in conversation with Mr. Shari from Pakistan as a personal trainer, and we are moving to our second segment, that is connecting people. Now we will love to know how Mr. Shari connects to the people, and this is one of my favorite segments because we have so many surprise elements for him. So before we start our surprise element, so मुझे आपसे जानना है कि how do you handle with your colleagues at work, at your professional, आप colleague लोग के साथ कैसे deal करते हैं? मेरी यही कोशिश होती है कि मैं मैक्सिमम जो टाइम उन्हें दे सकूं वो दूं। लाइक ऑन वीकेंड्स मैं प्रॉपरली टाइम निकालता हूं, एटलीस्ट 2-3 आवर्स ही निकालूं, लेकिन मैं लाजमी टाइम उनके लिए निकालता हूं। और मैं भी थोड़ा सा इजी हो जाता हूं जब कोलिग्स वगैरह से मिलता हूं, फ्रेंड्स से मिलता हूं, तो माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है, एक रूटीन से हट जाता है माइंड, तो रिफ्रेश कर देता है सब कुछ। Okay, it's not that कि सब लोग आपको पॉजिटिव ही कहें, आपको बहुत लोग भी नेगेटिव कहते होंगे, because you know ये प्रोफेशन ऐसा ही है, हर एक प्रोफेशन में नेगेटिविटी, हर एक प्रोफेशन होता है ये। तो जब लोगों का डिसअपॉइंटमेंट या नेगेटिविटी आपके ऊपर आते हैं तो आप उसको लाइक कैसे मैनेज करते हैं, हाउ यू हैंडल दैट सिचुएशन? मोस्टली तो ये होता है मेरी टीम डील कर रही होती है, मेरे जो मैसेजेस वगैरह होते हैं, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, मेरी टीम डील कर रही होती है, तो वो मुझे बता देते हैं कोई ऐसा अगर इशू हो, मेजर इशू हो, तो वो मुझे बता देते हैं, वरना वो खुद डील कर लेते हैं। लेकिन मोस्टली जो कॉमन एक लोगों के ज़हन में नेगेटिविटी आती है, वो कहते हैं कि जी जब वो पेज पर मैसेज करते हैं तो सबसे पहले तो वो पेज की जो डिटेल्स है, अबाउट का जो पोर्शन होता है, उसको नहीं पढ़ते। और सेम क्वेश्चन कई लोग ये क्वेश्चन करते हैं, शैरी व्हाट इज योर नेम? मोस्टली मैंने ये देखा है कि जी सबसे पहला क्वेश्चन होता है जी व्हाट इज योर नेम, वेयर यू फ्रॉम। आप पेज देखें, पेज के अंदर डिटेल का एक बटन होता है, उसको प्रॉपर टैब जब आप ओपन करेंगे, मेरी एक एक डिटेल वहां पे मौजूद है, मेरे जितने मैंने कंपटीशन कंप्लीट किए हैं वो मौजूद है, मेरी हाइट, मेरी वेट, मेरी प्रॉपर बायोस वहां पे मौजूद है। सबसे मेन चीज तो ये होती है। तो यहाँ से लोग काफी ज्यादा होते हैं कि जी अब मैं उन्हें रिप्लाई करता हूँ या मेरी टीम रिप्लाई करती है डिटेल्स आर मेंशन्ड ऑन पेज,
वो कहते हैं जी आपने ये लिख दिया कि डिटेल्स जो है पेज पे मेंशन है, आप हमें यहाँ पे भी तो बता सकते थे आई एम फ्रॉम पाकिस्तान या आई एम फ्रॉम रावलपिंडी। तो मैं ये कहता हूँ कि आप इसके बाद 10 क्वेश्चन और करेंगे, उन सबका जवाब जो है वो आपको वहां से मिल जाएगा। जो मेन चीज होती है जो लोग पूछते हैं वो ये चीज होती है, जो नेगेटिव वो शायद वो समझते होंगे। इसके अलावा एक और चीज होती है जो लोगों के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, लेकिन वो जाना नहीं चाहिए, लेकिन लोगों के ऊपर जाता है। वो ये चीज होती है कि जब वो किसी सर्विस के बारे में पूछते हैं तो आप जी डाइट प्लान दे दे हमें, ठीक है, हमें गाइड करें। अब वो ये नहीं पूछते कि आपकी अवेलेबिलिटी क्या है, एक प्रॉपर वे है, ठीक है। कोई भी एक समझने वाला बंदा, समझदार बंदा जो भी होगा, वो यही पूछता है कि जी आप फिटनेस कोच हैं, आपकी अवेलेबिलिटी क्या है, आपसे किस टाइम हम कांटेक्ट करें और किस टाइम हम आपकी सर्विसेज के बारे में बात कर सकते हैं, सर्विसेज की डिटेल दें। तो कई मैसेजेस आते हैं कि जी डाइट प्लान दे दो, एक्सरसाइज के बारे में बता दो। तो उनको मैं ये करता हूँ कि रेफर कर देता हूँ जो मेरे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है वहां पर, यूट्यूब पर, ताकि वो वहां से गाइडलाइन ले ले। लेकिन लोगों के ज़हन में ये आता है कि मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। एक बंदे ने मुझे मैसेज किया कि जी डाइट प्लान बना दो। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा जी इसके मैं ये चार्जेस लेता हूँ। तो वो बंदा कह रहा जी आप डाइट प्लान बताओगे सिर्फ, उसके भी चार्जेस लोगे। ये चीज जो है ना, लोगों के ज़हन में अवेयरनेस नहीं है। मेन चीज अवेयरनेस नहीं है, लोगों की भी गलती नहीं है, अवेयरनेस नहीं है उनको। क्वेश्चन, हाउ डिड यू गॉट इंस्पायर्ड फॉर बीइंग पर्सनल ट्रेनर? एनी इंस्पिरेशन जो आपको याद है, जो वाकया है जो आपको इंस्पायर किया है, हाँ मुझे पर्सनल ट्रेनर बनना है, लोगों का हेल्प करना है, ये थॉट आपको कहाँ से आया? किसी से कुछ इंस्पिरेशन, किसी से आप इंस्पायर हुए हो? मेरे चाचू थे, वो तो अब तो फोत हो चुके हैं, लेकिन उनको देखकर मुझे काफी ज्यादा क्रेज हुआ था फिटनेस का। व्हेन आई वाज इन 6th grade आई थिंक, तब मैं उनको देखा करता था कि ही इज डूइंग वर्कआउट, ही इज ट्रेनिंग। तो वहां से मेरे ज़हन में एक चीज आई कि यार काफी अच्छा काम है, मजे का काम है। तो मैं उनके साथ साथ ना उनको देख देख के मैं भी कोशिश करता था ट्रेनिंग करने की। और व्हेन आई वाज इन 8th grade, तो मैं घर में पुशअप्स वगैरह मैंने प्रॉपर वे में स्टार्ट किए, और मुझे शौक हुआ कि मैं इसकी जो नॉलेज है वो गेन करूं। मैं इवन बुक्स परचेज करता था, मेरी जो पॉकेट मनी होती थी वो मैं उससे इस किस्म की बुक्स जो थी वो परचेज करता था, और उनको देख के मैं उनको रीड करके, तो इस तरह मैं नॉलेज गेन करता था। और वही जो नॉलेज है वो काफी ज्यादा मेरे काम किया है और अभी तक काम आ रहा है। You know, जैसा आपने कहा he's no more, we pray that वो जन्नत में हो, आमीन। may Allah bless him always. You know, आप जो कर रहे हो उनका अजर मिल रहा है। You're inspiring people, you're inspiring the world now, you're connected to so many people. All that credit he's getting so much, we will not think about that person. With that, not just personal question, I would like to ask, anything which your mom or uncle and aunt especially, they told you something about your, कि हाँ बेटा ये है and all that, or they're proud of you, ऐसा कुछ कहा उन्होंने कभी भी आपको? जब मैंने फर्स्ट टाइम टाइटल विन किया, क्योंकि स्टार्ट में तो सब पेरेंट्स को होता है थोड़ा सा कि जी एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में जब एक बच्चा इन्वॉल्व हो जाता है तो ये स्टडी भी प्रॉपर वे में कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, तो उन काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी। और जब मैंने फर्स्ट टाइम टाइटल विन किया तो इट वाज द टाइटल ऑफ मिस्टर रावलपिंडी, एंड देयर वर 90 कंपटीटर्स एंड आई वॉन मिस्टर रावलपिंडी टाइटल। वो मेरे लिए काफी ज्यादा एक अच्छा मोमेंट था। और जब मैं घर आया और इवन पापा के जो फ्रेंड्स थे, क्योंकि 2 दिन बाद न्यूज़पेपर जितने भी थे उन सब में आ गया कि जब मैंने टाइटल विन किया तो न्यूज़पेपर में आ गया। तो ही वाज इन ऑफिस, तो वहां पर जब उन्होंने उनके जो फ्रेंड्स थे वो न्यूज़पेपर की कटिंग लेके आए जी कि ये देखो ना, और हमें मिठाई खिलाओ, हमें ट्रीट दो। उनसे उन्होंने कहा, तो ये एक अच्छा मोमेंट था।
हाँ, तो वो जब मैं घर आया तो इवन ही ब्रॉट द कटिंग ऑफ दैट न्यूज़पेपर्स। और मैं इवन जब मैं अपने ऑफिस गया तो वहां पर मैंने देखा, तो वहां पर भी काफी ज्यादा जब न्यूज़पेपर में आया, काफी लोग ऐसे थे जिन्हें मैंने बताया भी नहीं था कि मैं compete कर रहा हूँ। और वो जो उन्होंने मुझे कॉल किया कि जी न्यूज़पेपर देखो, न्यूज़पेपर देखा, तो मैं काफी खुश भी हुआ, और उन सब लोगों ने काफी ज्यादा एक अच्छा रिस्पॉन्स दिया। Well said. So now we have some surprise element for you. जैसे आपने कहा कि connecting people, and as our team research, we will be connecting some of your people on air now online, and let's see what they say. Let's start with. लेकिन शहरी के कॉन्टेक्ट में आगे रिसर्च है वो बिल्कुल जारी है और देखते ही देखते अब तो ये सारा ऑलमोस्ट एक बार बन चुका है, सेलिब्रिटी बन चुका है। He's smiling over there. आप उनको कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? वो हमारी दूसरी लाइन पे है। शहरी को मैं देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। हम में से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने गोल को काफी एंड तक लेके जाते हैं ना, वरना गोल कहीं ना कहीं स्टार्ट में कहीं ना कहीं रह जाता है। तो मेरे ख्याल में तो इसको देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, जिससे जो अपना गोल था उसका अचीव किया, बल्कि हमारे लिए एक पैसा भी। Thank you so much to answer my call, Thank you and so really, really, it's been very pleasure to talk to you. Thank you so much. Good night. शहरी बहुत ही ऑनेस्ट और हमदर्द किस्म की फ्रेंड है और आई कैन से इन सिंपल वर्ड्स के ऐसे लोग कम मिलते हैं आजकल के बिजी दौर में, और मतलब तरह दुनिया में इस तरह के लोग बहुत कम है जो आपको बिना गर्ज, बिना किसी गर्ज के मतलब कि आपके साथ ऑनेस्ट है। ज्यादातर लोग होते हैं जो अपने मतलब के रहते हैं, बस अपना उनका काम पूरा हुआ मतलब अच्छा जी गुड बाय 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 टाटा। तो जो शहरी हैं ये ऐसे नहीं, बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त, मतलब ऐसे दोस्त के जिनको लफ्जों में बयान ना किया जा सके। तो मेरा जर्नी जो शहरी के साथ है वो बिगिनिंग से है, मतलब शहरी ने जब स्टार्ट किया अपना करियर एज अ फिटनेस की फील्ड में, वो शहरी इस तरह से जैसा छोटा भाई मेरा। ही इज वेरी नाइस गाय, और मतलब कहते हैं जब शहरी का चक्कर और शहरी का वर्ड मेरे सामने आके तो मेरे पास अल्फाज कम पड़ जाते हैं शहरी को एक्सप्लेन करने के लिए शहरी क्या है। Well said. तो if you don't mind, कुछ आप लोग को यादें हैं जो शरारती यादें जो आप लोग मस्ती किया हो, जो अभी आप लोग याद करके मुस्कुराते हैं, हाँ एक दिन जमाना था हमारा ऐसा, कुछ यादें हैं? हाँ ऐसी बहुत सी यादें, ऐसी एक नहीं, हर रोज की ऐसी यादें हैं। और हमारे ज्यादातर जो यादें हैं, जो हमारी मेमोरीज हैं, वो फिटनेस को ही लेके, कि फिटनेस के ही जिम के दौरान जैसे मामला हो गए हों, या कोई ऐसे ही किसी को एक्शन में गेम लगाते देखो, शहरी कह रहे हो यार देखो बंदा इससे लगा बंदा एक्शन देखे, वो ऐसी चीजें जो लाइव आप तो देख के एंजॉय करते थे, लेकिन उनको वर्ड में करके अगले बंदे को अपने बताते यार मतलब क्या था वो। और कुछ ऐसे सफर है कुछ आउट ऑफ सिटी शहरी के साथ जो कि बहुत मेमोरेबल है। शहरी के साथ हंसी मजाक हमारा बहुत सोबर होता है। शहरी की जो पर्सनैलिटी है वो सिंपल है, उसमें कुछ दिखावा नहीं है। तो शहरी जो है ना वो शहरी के साथ जो सफर है वो आपको समझ सिंपल और ब्यूटीफुल मेमोरी देके जाता है। Thank you so much, Bilal, to answer our call at this time. We hope you to connect us again. Thank you so much. Advice देना चाहते हैं या कुछ feedback, कुछ कहना चाहते हैं अपने इनकनेक्टेड पीपल से? मैं काफी ज्यादा एक तो खुश भी हूँ इनका जो रिस्पांस था मेरे बारे में, और मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए आप जिस किस्म के इंसान खुद होते हैं आपको भी दूसरा इंसान उस किस्म का लगता है। लाइक दे आर सिंसियर टू मी, दे आर गुड एंड गुड फ्रेंड्स, गुड ब्रदर्स, तो इसीलिए उन्हें मेरा भी रिस्पांस जो है वो भी अच्छा लगता है। तो जिस तरह इन्होंने जो कुछ वर्ड्स बयान किए मेरे लिए, तो
मैं भी उनके लिए यही बयान करना चाहूंगा कि क्योंकि ये इनकी थिंकिंग एक अच्छी है। देखिए, आपने कॉल पे बात की, आपको पता लग गया होगा इनका माइंड सेट कैसा है, इनकी थिंकिंग कैसी है। तो एक इंसान जब इतनी अच्छी थिंकिंग है जिसकी, तो वो खुद कैसे बुरा हो सकता है, वो खुद भी कितना अच्छा इंसान होगा। तो मैं यही कहूंगा कि स्टे विद मी एंड स्टे हैप्पी, और साथ साथ ये कि स्टे कनेक्टेड विद मी। आई थिंक यू गेट इमोशनल नाउ। आप थोड़े इमोशनल भी हो गए थे जब आप उनकी आवाज सुन रहे थे। Really, it means a lot because this is what we say कि इस दौर पे कनेक्टिव होना it's very hard, but we should connect with the people. That's what I always say, and that's our show in कि connect रहो, ताकि लोगों से आप जितने भी कनेक्ट रहेंगे ना, उतना अवेयरनेस होगा। आपने लास्ट सेगमेंट में क्वेश्चन भी किया था कि आप कैसे कनेक्टेड रहते हैं जो अपने कोलीग्स हैं उनके साथ। तो इन्होंने यही एक वाकया जो बयान किया, उससे मैं आपको वो भी शेयर करूंगा कि इसमें जब मेरे शूट वगैरह होते हैं, शूट्स हो गए या किसी शो में मैंने जाना हो, तो मैं कोशिश करता हूँ जो अपने मेरे फ्रेंड्स हैं, जो कोलीग्स हैं, 2-4 जो स्पेशल फ्रेंड्स हैं, उनको मैं साथ ले जाता हूँ। आउट ऑफ सिटी अगर जाना हो तो वो एक टूर बन जाता है हमारा। हम इंजॉय भी करते हैं, और जो अपना जो कमिटमेंट्स होती हैं मेरी, क्योंकि कमिटमेंट तो अगर कोई शूट हुआ तो वो भी 2-4 घंटे में हो जाएगा खत्म, और कोई शो हुआ वो भी 1-2 घंटे में खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद जो है टाइम काफी ज्यादा मिल जाता है। तो हम जब भी ऐसा प्लान होता है तो मैं कोशिश करता हूँ मैं अपने फ्रेंड्स को साथ लेके जाऊं, और एक टूर टाइप बन जाता है, और काफी एक एंटरटेनिंग जो है वो हमारा ट्रिप रहता है। Perfect. With that note, we are going to end our segment number 2. We are in conversation with Mr. Sharif from Pakistan, personal trainer. Stay tuned with us with the segment number 3, which is the rapid fire. Let's see how he connects with us. Till then, let's take a short break. Please don't move anywhere. Welcome back after a short break. We are in conversation with Mr. Sharif from Pakistan, as a personal trainer. Now we are moving to another exciting segment, rapid fire. Let's see how Mr. Shari answers the rapid fire, and if he answers do well, there are so many things are waiting for him. So are you ready, Mr. Shari, for the rapid fire? Yes, I'm ready. Okay. If you get a chance, अगर आपको मौका मिला कि फैमिली को चुने या आपका पर्सनल ट्रेनर को चुने, what will you select? Family. Very good. What is one thing you will ask people to stop asking you? क्या आप कहना चाहते हैं? हाँ, मत पूछो, बस पूछ लिया वो। What is name and where you from? Okay, जिंदगी से सबसे बड़ा लेसन आपको क्या सीखने को मिला? Keep moving. Struggle करते रहें. Stop ना। अगर आपको कहा जाए कि आप पे एक किताब बनेगा, आप पे कैरेक्टर लिखे जाएंगे, तो आप कौन से कैरेक्टर ज्यादा पसंद करेंगे? Character who is inspiring the world. Yeah. About something like health or fitness. Well said. सबसे बड़ा अचीवमेंट जो आपने हासिल किया, आपको बहुत खुश है कि हाँ आपके डिसीजन करेक्ट है, कौन सा अचीवमेंट होगा? Recently, I have completed a course from International Sports Sciences Association, and I'm working with them, and I'm doing another course. तो ये काफी ज्यादा एक अच्छा मेरे जो प्रोफाइल के लिए है, एक अच्छा इम्पैक्ट भी दिया इसने, और एक अच्छा अचीवमेंट था। इसके अलावा अगर आप अचीवमेंट पूछें तो जो टाइटल्स मैंने लिए हैं, मैंने मिस्टर रावलपिंडी का टाइटल लिया है, मिस्टर पंजाब जो होता है प्रोविजनल, उसमें मैंने गोल्ड मेडल लिया है, मिस्टर पाकिस्तान जो नेशनल कंपटीशन होता है उसमें मैंने ब्रॉन्ज मेडल लिया है। तो ये अचीवमेंट जो है वो मुझे आई एम प्राउड ऑफ देम। Okay, now you're connected with that so many people. तो आपको एक मौका मिला एक सेंटेंस बोलने के लिए, तो कुछ कहना चाहते हैं? One sentence, in a one sentence, क्या कहना चाहेंगे आप? Stay healthy, stay motivated. Very good. आपकी लाइफ बहुत बिजी होंगे, ऐसे कोई शख्स आपने जिससे ना मिला हो, बहुत अरसा हो गया आप मिलना चाहते हो, एंड अब उनको क्या कहना चाहते हैं अगर वो आपको देख रहे हैं? I have a friend in London. Okay. His name is Asif. I want to meet him. तो उनको कुछ कहना चाहते हैं आप?
See you soon, inshallah. I have cancelled many trips of London cause of COVID, but I will definitely see you soon. ओके अगर आपको एक मौका मिले कि आप कोई भी ऐप डिलीट करो मोबाइल से, आप क्या डिलीट करेंगे? मोबाइल से ऐसी कोई ऐप तो है नहीं मेरे ज़हन में फिलहाल, क्योंकि कुछ सेलेक्टिव सी ऐप्स होती हैं जो मैं रखता हूँ और जिन्हें मैं यूज करता हूँ डेली बेसिस पर. ओके अगर आपको मौका मिला कि आपको 3 चीजें बताने के लिए, 3 विशेस जो आपके पूरे हो सकते हैं, तो 3 ख्वाहिश आपकी क्या हो? इट्स अ टफ क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं पेरेंट्स को हज कराना चाहता हूँ. ओके फर्स्ट विश ये है मेरी, और थ्रू आउट द लाइफ उनको एक सेटिस्फैक्टरी लाइफ देना चाहता हूँ. मतलब जितना मुझसे हो सके, जो मेरे है वो सब कुछ मैं उनको देना चाहता हूँ, क्योंकि रिलेशंस की काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस खासतौर पे मैं करता हूँ कि क्योंकि ये आपको जो ब्लड रिलेशंस होते हैं बार बार नहीं मिलते आपको. आप काफी ज्यादा पेरेंट्स की खासतौर पर वैल्यू जो है वो आई थिंक अगर किसी को पता है तो मुझे पता है कि पेरेंट्स की क्या वैल्यू होती है. तो मैं हमेशा उनको एक जितना मुझसे हो सके खुशियां देना चाहूंगा. ओके अगर आपको मौका मिले कि आप एक आउटडोर में जाएं किसी के साथ, तो which place you want to go as soon as possible? I want to perform Umrah. As a fitness, sorry? As a fitness challenge में? फिटनेस चैलेंज में तो आई थिंक जनरल पूछ रहे हैं आप. जनरल में तो आई वांट टू परफॉर्म उमरा. आई वांट टू गो टू सऊदी अरेबिया टू परफॉर्म उमरा. इंशाल्लाह वी विश यू बेस्ट. यहाँ पे हमारा सेगमेंट नंबर 3 एंड होता है, दैट इज रैपिड फायर. Stay tuned with us. We will be back after a short break, and we're in conversation with Mr. Shari. The last segment, which is the most important segment of our concept, and I hope you will love it. Welcome back after a short break. We're in conversation with Mr. Shari from Pakistan, personal trainer who has achieved so much in his life, and our wishes are always there with him. Finally, Mr. Shari, हम लोग ये सेगमेंट यहाँ पे एंड करने वाले हैं. तो आपसे हमारा जो मेन टॉपिक है जानना चाहते हैं, आपके ऐसी कोई ख्वाहिश जो आप पूरा करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि पूरा हो जाए. इंशाल्लाह ये दुआ है कि पूरा हो जाए. सबसे जो मेन चीज है जो मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर चुका हूँ, कि जितनी जो पॉपुलेशन है उनको फिटनेस की नॉलेज हो जाए. ठीक है. जो मेन इश्यूज होते हैं लोगों को एज के साथ, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल इशू, यूरिक एसिड का इशू, ब्लड प्रेशर का इशू, वो सब जो है वो जब आपको फिटनेस की अवेयरनेस हो जाएगी तो ये सब कुछ आपका जो है रिजॉल्व हो सकता है. और मेरा जो मेन मकसद था, जो मैंने आपके साथ कनेक्शन किया है इसी सिलसिले में, टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑफ फिटनेस. फिटनेस की अवेयरनेस जितना हम स्प्रेड कर सकें तो इट्स ब्रिलियंट थिंग. Thank you so much, Mr. Shari, to connect with us from Pakistan. Really, it was so inspiring time with you. I hope my viewers loved a lot, and I hope your wishes all comes true. From us, it's just a token to say thank you for this much valuable time. Really, इतना connected, इतना inspired होना भी बहुत जरूरी है. We bring lots of positivity. Thank you so much to connect with us. Stay tuned for more updates. Now we are ending this show today, and I hope you guys love it. Really, from my side, I really love in conversation with Mr. Shari. Thank you so much once again.